بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس 40 دن کورس کو ہمارے لیے آسان بنائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کو مکمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کورس کو مکمل کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور فرمائے. ہمارے قوت حافظہ میں اور قوت فہم میں برکت اور اضافہ عطا فرمائے. اور علم الصرف علم النحو کا جو یہ کورس ہے اس کا اصل جو مقصد ہے قرآن حدیث اور فقہ کو سمجھنا. یہ کورس ہمارے لیے قرآن حدیث اور فقہ کو سمجھنے میں معاون بنائے. تو آج یہ ہماری پہلی کلاس ہے صرف اور نحو کے حوالے سے. اس میں ترتیب ہماری یہ ہوگی کہ روزانہ کی بنیاد پہ، روزانہ سے مراد ہفتے میں 3 دن جو ہے جمعہ ہفتہ اتوار، یہ 3 ایام ہماری کلاس ہوا کرے گی. اور اس میں آدھا گھنٹہ صرف کی کلاس ہوگی اور آدھا گھنٹہ نحو کی کلاس ہوگی. اور جو سبق آپ کو دیا جائے اب روزانہ کی بنیاد پہ اسے یاد کریں. یہ جو آپ کو پڑھایا جائے گا یہ کتابوں میں موجود ہے، یہ تمام باتیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، محفوظ کرنا ہے. یہ جو 40 ایام ہمیں ملے ہیں ان 40 ایام میں آپ نے کوشش کرنی ہے، حفظ کرنا ہے، یاد کر لینا ہے زبانی. ٹھیک ہے؟ کچھ باتیں جو ہے ان کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہوگا، کچھ باتوں کو صرف یاد کرنا ہوگا. تو اگر آپ سب نے ہمت کی، توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ میرے ساتھ چلتے رہیں اور جس ترتیب کے مطابق میں یاد کرانا چاہ رہا ہوں اس کے مطابق آپ نے یاد کر لیا تو انشاءاللہ قوی امید ہے کہ صرف اور نحو کا جو ڈر ہے آپ کے ذہنوں میں اور جو ایک خوف محسوس کرتا ہے انسان وہ دور ہو جائے گا. عربک گرامر کا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صرف اور نحو جو ہے یہ صرف چند منٹوں کا کھیل ہے. یہ کورس مکمل کرنے کے بعد پھر آپ چند منٹوں میں صرف اور نحو مکمل طور پہ دہرا سکیں گے. اور جو طلباء اور طالبات آخر میں مکمل طور پہ مجھے صرف اور نحو سنائیں گے تو انشاءاللہ ان کو انعام بھی دیا جائے گا. کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ صرف اور نحو جو ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں، کئی سال مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں نہ تو عبارت پڑھنی آتی ہوتی ہے نہ ہی کوئی صیغہ معلوم کر سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ 2 3 4 مختلف کتابیں ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، مختلف کورسز وغیرہ ہم نے کیے ہوتے ہیں. اصل اس کی مختلف وجوہات ہے. ان میں سے ایک اہم وجہ کل میں نے یہ بتائی کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس لائبریری ہے، کتابیں موجود ہے، ہر کتاب اس کے پاس موجود ہے. اب اس کے 2 صورتیں بنتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ ترتیب کے مطابق اپنی کتابیں رکھتا ہے، وہ ترتیب کے مطابق اپنی کتابیں رکھتا ہے. اب جب اسے کسی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جاتا ہے فی الفور وہ کتاب نکال لیتا ہے
चूँकि तरतीब के मुताबिक किताबें रखी होती थी। दूसरा बंदा है गैर मुरतब अंदाज से उससे सारी किताबें रखी है, कोई तरतीब नहीं है, एक दूसरे के ऊपर किताबें रखी हुई है, कौन सी किताब कहाँ है ये बिल्कुल मालूम नहीं हो सकता। अब उस बंदे को किसी किताब की ज़रूरत पड़ती है, अब वो भी जाके वो देखना शुरू कर लेता है। अब उसको घंटों घंटे लग जाते हैं लेकिन वो किताब नहीं मिलती, हालांकि वो किताब मौजूद है। तो अब ये जो दूसरा बंदा है, इसके पास इन किताबों का कोई फायदा नहीं है। किताबों का होना ना होना दोनों बराबर हो गए उसके लिए, लेकिन अगर वो तरतीब के साथ रखता तो उसके लिए फायदा था। इसी तरह सर्फ और नहव के कवाइद है, इनको हमने इस तरीके से याद रखना है, तरतीब के मुताबिक अपने जहन में रखना है, ताकि कल को जब हम इबारत पढ़ें हमें इन कवाइद की ज़रूरत पड़े, फिलफौर वो हमारे जहन में मुस्तहज़र होकर सामने आ जाए। जो भी हम चीज़ देखते हैं, इल्म हासिल करते हैं, मालूमात लेते हैं, वो हमारे जहन में जाते हैं। अब वो कुछ जहन के पीछे होते हैं, कुछ सामने होते हैं। तो अगर हम मवाद को, मालूमात को तरतीब के मुताबिक अपने जहन में रखना शुरू कर देंगे, तो फिर उसका निकालना हमारे लिए आसान होगा। जब हम इबारत पढ़ेंगे तो फिलफौर जो कायदे जिस कायदे की ज़रूरत होगी वो फ़ौरन आएगा सामने, और इबारत पे तत्वीक जो है उसको अप्लाई करना हमारे लिए आसान होगा। तो इंशाअल्लाह ये तरतीब के मुताबिक हमने पढ़ना है। और दूसरी एक बड़ी वजह ये होती है कि सर्फ और नहव, आप जब किताब देखते हैं कि ये तो 200 सफ़हात पे मुश्तमिल है, ये इसमें ये बात भी है, कौन कौन सी बात याद करें, किस तरीके से याद करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए कि इतनी बड़ी किताब कौन याद करे और इतनी बड़ी किताब कौन अपने जहन में रखे। इस वजह से भी मुश्किल पेश आती है, याद नहीं करता इंसान कि मैं तो याद ही नहीं कर सकता इतनी बड़ी किताब। तो ये डर भी आपने ख़त्म करना है। सर्फ और नहव की जो अहम चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम याद करेंगे। और अभी सबक के आखिर में मैं मुकम्मल कोर्स का जो एक खाका है वो आपके सामने पेश करूँगा कि हमने पढ़ना क्या है। हमने पढ़ना क्या है, याद किन चीज़ों को करना है ये 40 दिनों में, तो वो मैं मुकम्मल तौर पे खाका भी आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपके सामने नक्शा हो कि हमने इसके मुताबिक चलना है, हमने इसके मुताबिक चलना है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी शहर में जाते हैं और वो शहर आपके लिए नया होता है बिल्कुल, अब 2 सूरतें होती हैं। एक ये है कि आपके पास नक्शा मौजूद है, जिस तरह आजकल गूगल मैप है, तो आप वो जगह देख लेते हैं, फ़ौरन पहुँच जाते हैं, ठीक है? आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती, आसानी से पहुँच जाते हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि आपके पास नक्शा मौजूद नहीं है, आपने एक जगह जाना है, अब कभी एक से पूछ रहे हैं, कभी दूसरे से पूछ रहे हैं, कभी तीसरे से कि फलानी जगह कहाँ पे है, कोई कहीं बेचता है, कोई कहीं बेचता है। ऐसी सूरत में भी आप पहुँच जाते हैं काफ़ी देर बाद, लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है, आपको मुश्किल पेश आती है। तो इसीलिए मैं शुरू में आपके सामने नक्शा पेश करूँगा ताकि आपको परेशानी ना हो, आप आपको आसानी हो, आप मकसूद हासिल करने में आपके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये नक्शा आपने अपने ज़हन में रखना है और इस नक्शे को हमने इसी तरतीब के मुताबिक याद करना है। अभी मुकम्मल तौर पे आपने याद नहीं करना, मैं रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा पढ़ाता जाऊँगा, तफ़सील बताता जाऊँगा, आपने उसको याद करना है। और इस नक्शे में भी कुछ बातें जो हैं वो समझने से ताल्लुक़ रखती होंगी और कुछ बातों को आपने याद करना होगा, ठीक है? और जब आप रोज़ाना सबक याद करेंगे, रोज़ाना आप सबक याद करेंगे तो उसको रोज़ाना की बुनियाद पे दोहराना भी होगा। ये नहीं कि आज का सबक याद कर लिया, छोड़ दिया, बल्कि आज का सबक आपने याद कर लिया, 10 दिनों बाद भी आप आज का सबक जो है वो रोज़ाना याद कर दोहराना होगा। यानी आज 40 दिनों का जो हमारा ये कोर्स है, पहले दिन वाला सबक भी रोज़ाना की बुनियाद पे आपने दोहराना है। पहले दिन वाला सबक जो है, वो भी आपने रोज़ाना की बुनियाद पे दोहराना है। तो ये चंद बातें जो हैं ये तो इनका ताल्लुक जो है वो कोर्स से था। और एक अहम बात ये कि एक दूसरे पे इन्हिसार करना आपने छोड़ देना है, आपने अज़ खुद मेहनत करनी है। आपने क्या करना है, अज़ खुद मेहनत करनी है। जो होमवर्क आपको दिया जाए, जो काम आपको दिया जाए, वो आपने खुद तैयार करना है। अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो क्लास फेलो होते हैं उनमें से कोई एक तैयार कर लेता है, सबको शेयर कर देते हैं।
اور پھر اسی کو کاپی کر کے استاد کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو طالب علم یا طالبہ وہ خود تیار کرتی ہے تو اس کو تو فائدہ ہوتا ہے، اور جو کاپی کرنے والے ہوتے ہیں، نقل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب کو مکمل طور پہ فائدہ ہو، جو کام آپ کو دیا جائے آپ از خود کریں، آپ اس کام کو از خود کریں۔ اگر آپ از خود کرتے ہیں، مکمل طور پہ غلط بھی کرتے ہیں، تب بھی اس میں آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ ایک دن آپ غلط کریں گے، 2 دن غلط کریں گے، 3 دن غلط کریں گے، 4 دن غلط کریں گے، تو 5ویں دن انشاءاللہ آپ صحیح کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہر ایک نے کام جو ہے خود کرنا ہے، اور جو کام دیا جائے اس کی پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے۔ 3 دن ہمارے سبق ہوں گے، 4 دن آپ بالکل فری ہوں گے، اس میں آپ بھرپور طریقے سے پریکٹس کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی دوبارہ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوگی، وہ سنیں، وہاں پہ اگر سمجھ نہ آئے پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتا دیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا دوبارہ سمجھا دوں گا۔ تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی، ہر بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ باقاعدہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہمیں چند باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہے، دین کا علم سیکھتے رہتے ہیں۔ اب طالب علم جو ہے جب علم دین حاصل کرتا ہے وہ نیت کیا رکھے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، تو اس کی روشنی میں ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، تاکہ علم دین سیکھنے کا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط راستے پہ چل پڑے ہوں۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من طلب العلم، کہ جو شخص علم کو طلب کرے، یعنی علم دین کو طلب کرے، لیجاری به العلماء، کہ وہ اس علم کے ذریعے علماء کے ساتھ مسابقہ کرے، دوڑ لگائے، او لیماری به السفہاء، یا وہ اس علم کے ذریعے سے بے وقوفوں کے ساتھ مناظرہ کرے، او یصرف به وجوہ الناس الیہ، یا وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، ادخلہ اللہ النار، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے والوں کو 3 غلطیوں سے روکا ہے کہ وہ علم دین اس لیے حاصل نہ کریں کہ میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ ریس لگاؤں گا کہ میرا علم آپ سے زیادہ ہے، آپ کا کم ہے، یا باطل فرقوں کے ساتھ مناظرے کروں گا۔ علم دین حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو، پیش نظر کیا ہو کہ باطل فرقوں کے ساتھ مناظرہ کروں گا، فلانے کے ساتھ مناظرہ کروں گا، یا تیسرا مقصد کیا بتایا کہ عام لوگوں کی نگاہ میں مجھے بلند مقام حاصل ہوگا، لوگ مجھے مفتی کہیں گے، لوگ مجھے عالم کہیں گے، لوگ مجھے دیندار کہیں گے۔ تو یہ تینوں نیتیں جو ہے غلط ہے، یہ تینوں ارادے جو ہے غلط ہے۔ اور پھر ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ علم دین کا مقصد آخر کیا ہے؟ علم دین کا مقصد کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب اگرچہ اس حدیث میں نہیں دیا گیا، لیکن قرآن مجید میں اور دیگر احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم دین کا اصل مقصد صرف 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ علم دین کا اصل مقصد صرف 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، دین کو سمجھنا، کہ مجھے دین کے احکام اور اس کی حدود جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، تاکہ پھر عمل کرنا آسان ہو۔ اور دوسرا یہ کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں اس مقصد کو اس طریقے سے تعبیر کیا گیا ہے،
लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि उन्हें दीन की समझ हासिल हो जाए, ताकि उन्हें दीन की समझ हासिल हो जाए। इसी तरह हदीस में भी आया है, मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह, कि जिसने वो इल्म सीखा जिससे अल्लाह ताला की रज़ा मकसूद होती है। तो कुरान और हदीस की इन दो हवालों से हमें ये बात मालूम हुई कि इल्म दीन हासिल का मकसद ये होना चाहिए कि मुझे दीन की समझ आ जाए ताकि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो सके। हमारे बहुत से उलमा ने तालिब इल्मी के ज़माने में इस मकसद को भी पसंद नहीं किया। हमारे बहुत से उलमा ने, बड़े बड़े उलमा जो गुजरे हैं जिन्हें अकाबिर कहा जाता है, तालिब इल्मी के ज़माने में इस मकसद को भी पसंद नहीं फरमाया कि मैं ये इल्म हासिल करके आगे लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि इस नीयत में भी मखलूक बतौर मकसूद शामिल हो जाती है। मखलूक जो है वो शामिल हो जाती है, जो कि मुकम्मल इखलास के खिलाफ है। इल्म दीन तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहिए कि मुझे दीन की समझ आ जाए और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए। बाकी लोगों को तबलीग व तालीम करना, तसनीफ़ व तालीफ करना, तकरीर और खिताबत करना, वाज़ व नसीहत करना, ये जो खिदमत है, ये इल्म का असल मकसद नहीं है। ये इल्म का असल मकसद नहीं है, बल्कि इल्म दीन हासिल होने के बाद ये ज़िम्नी और सानवी चीज़ है। जब इंसान इल्म दीन हासिल कर लेता है तो ज़रूरत और हाजत के मौके पे जो आलिम होता है या आलिमा होती है, ये उसके ज़िम्मे में आ जाती है बात। और फिर वो जो आलिम या आलिमा है, इल्म दीन हासिल करने के बाद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए ये तमाम दीनी खिदमात वो करता है, और फिर ये तमाम काम जो है ये भी अल्लाह ताला की रज़ा का ज़रिया बन जाते हैं। लेकिन ये इल्म के तलब करने के मकासद में से नहीं है, बल्कि जब इल्म इंसान को हासिल हो जाता है उसके बाद की जिम्मेदारी है। तो तालिब इल्म को शिरों में सिर्फ ये नियत करनी चाहिए कि मुझे दीन समझ में आ जाए और मैं अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकूं। लेकिन इस तरीके से पढ़ना चाहिए तालिब इल्म को ताकि कल को फिर वो सही तरीके से आगे पढ़ा भी सके, कल को सही तरीके से पढ़ा भी सके। हमारे दादा उस्ताद मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि तकरीबन मेरी 80 साल जिंदगी का खुलासा और निचोड़ ये है कि मैं इन 80 सालों में दुनिया के हर किस्म के बंदे से मिला हूँ, चाहे उनका ताल्लुक सियासत के साथ हो, हुक्मरानी के साथ हो, बड़े बड़े उलमा से मुलाकात हुई, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, हर एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई और हर एक को देखा। तो मैंने ये नतीजा और खुलासा निकाला कि दुनिया में तदरीस से, दर्स और तदरीस से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। दुनिया में दर्स व तदरीस से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है, बशर्ते कि इसमें अल्लाह ताला की रज़ा और इखलास मौजूद हो। दुनिया में दर्स व तदरीस से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है, बशर्ते कि इसमें अल्लाह ताला की रज़ा भी शामिल हो और इखलास भी मौजूद हो। और फिर फरमाया कि दर्स और तदरीस से बदतरीन कोई चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं है। कब? जब उसमें इखलास ना हो। जब दर्स और तदरीस में इखलास ना हो तो इससे बदतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी नीयतों को दुरुस्त करें कि कहीं हमारी नीयत ये ना हो, ये जो गलत नीयतें इस हदीस में बयान की गई है
ان में से कोई नीयत ना हो। इसके अलावा और बहुत सी नीयतें हो सकती है, तो अपनी नीयतों को हमें दुरुस्त करना चाहिए ताकि इल्म दीन हासिल करने का जो असल मकसद है वो हमें हासिल हो, इल्म दीन के जो अनवारात और बरक़ात है वो हमें हासिल हो। और ये बात याद रखें कि जब इंसान कोई काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, इखलास के साथ करता है, तो दुनिया जो है, जो कि घटिया चीज़ है, वो इंसान को खुद ब खुद हासिल हो जाती है, अगर इसे इंसान उसको तलब भी ना करे। हमारे यहाँ देहातों में जब इंसान कोई गाय वगैरह खरीदता है, उसका मकसद होता है दूध का हुसूल। वो क्या करते हैं, जब खरीदो फरोख्त करते हैं, पूछते हैं कि जी ये गाय कितना दूध देती है, कितने औकात में कितना दूध देती है। हालांकि गांव देहात में जो रहने वाले अफराद है वो समझते हैं, जानते हैं कि गांव देहात में इंसानों को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दूध की भी ज़रूरत होती है और गोबर की भी ज़रूरत होती है। गोबर को सुखा के उसको जलाया जाता है, दोनों की ज़रूरत होती है। तो लेकिन जब खरीदो फरोख्त का मामला आता है, लोग पूछते हैं कि दूध कितना देती है, कोई ये नहीं पूछता कि गोबर कितना देती है, दूध का पूछा जाता है। तो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक होना चाहिए, वो दीन के जरिए से होना चाहिए। जिस तरह हम दूध का पूछते हैं, ये इसकी मिसाल दीन की है। असल मकसूद हमारा दीन होना चाहिए। दुनिया जो है वो गोबर की तरह है, वो खुद ब खुद आ जाती है। तो जो अल्लाह की रज़ा के लिए दीन सीखता है और सिखाता है, इखलास के साथ इस शोबे से वाबस्ता होता है, तो अल्लाह ताला उसे महरूम नहीं फरमाती। ठीक है। अब ये चंद बातें जो आपके सामने की है, इनको आपने पेश नज़र रखना है। अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना है कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों को दुरुस्त करे। अगर हमारी नीयतों में कोई खोट वगैरह हो, खजी हो, तो उसे दूर फरमाए और हमारी सही रहनुमाई फरमाए। तो ये इल्म सर्फ का मुकम्मल खाका जो है ये आपके सामने आ गया। इस तरीके से हमने पढ़ना है। आज मैं थोड़ा सा वैसे गो थ्रू कराऊंगा, थोड़ा सा दिखा दूंगा ताकि फिर हमारे जहन में हो कि किस तरीके से हमने लेके चलना है और फिर इसको याद भी करना है इंशाल्लाह। तो अमूमन यहाँ पे सर्फ में नॉर्मली फ़ेल से बहस करेंगे, अगरचे इसम के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। इसम के हवाले से भी क्या होती है, गुफ्तगू होती है, लेकिन ज़्यादातर फ़ेल से बहस की जाती है। सर्फ में ज़्यादातर किससे बहस की जाती है, फ़ेल के साथ डिस्कशन होती है। इसम के साथ भी होती है लेकिन कम। ठीक है। तो इसलिए फ़ेल ही को हमने लिया है। तो इसमें फ़ेल की जो है एक तक़सीम होती है बेएतबार ज़माना और माना के। इन्होंने ये थोड़ा-सा गलत बनाया, ये बाद में सही कर लेंगे। एक तक़सीम होती है बेएतबार ज़माना और माना के। ये मैं वैसे थोड़ा-सा बता रहा हूँ, आप परेशान ना हो। बाज़ तालिबात बिल्कुल नई होंगी तो ये अल्फ़ाज़ भी उनके लिए नए होंगे। तो ये इंशाअल्लाह एक-एक बात जो है तफ़सील से हम पढ़ेंगे। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो उस हवाले से परेशान नहीं होना। एक-एक बात जो है वो आपको समझा दी जाएगी। अभी आप सिर्फ़ देखें, सुनें कि ये चीज़ें हमने इस तरीके से पढ़नी है। तो पहली तक़सीम जो हमारी होगी फ़ेल की बेएतबार ज़माना और माना के, ये तकरीबन 4 किस्में बयान की गई है। यहाँ पे वैसे 3 किस्में बयान की गई है। माज़ी, मुज़ारे, अमर और नहीं होनी चाहिए। ठीक है। माज़ी, मुज़ारे और अमर और नहीं। फिर आगे माज़ी की कुछ किस्में हैं और इसी तरह बेएतबार फ़ाइल की फिर एक किस्म बयान की गई है, मारूफ़ और मजहूल। बेएतबार मफ़ऊल की 2 किस्में बयान की गई, मुतअद्दी और लाज़िम। बेएतबार इस्बात व आदम इस्बात की 2 किस्में बयान की गई है, मुस्बत और मनफ़ी।
एतबार एराब की दो किस्में बयान की गई है, मुअरब और मबनी। एतबार तादाद हरूफ दो किस्में बयान की गई है, सुलासी और रुबाई। एतबार सेहत हरूफ तकरीबन 4 किस्में इब्तदाई तौर पर बयान की गई है, सही, महमूज, मुज़ाअफ़ और मुअतल। फिर मुअतल की दो किस्में बयान की गई है, एक हर्फ इल्लत हो, दो हर्फ इल्लत हो। एक हर्फ इल्लत हो तो मिसाल अजवफ नाकिस, दो हर्फ इल्लत हो लफीफ मफरूक और लफीफ मकरून। तो ये हर एक की किस्में जो है वो आएंगी। ये बेतबार सेहत हरूफ जो है इसमें तकरीबन जैसे आप एडवांस लेवल सर्फ कहते हैं वो आ जाएगी। ये क्या है, एडवांस लेवल सर्फ जो है वो आ जाएगी इसमें। और बाकी ये जो पूरा पोर्शन है ये इब्तदाई लेवल का सर्फ होगा इसमें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है, और अगर आपकी दिलचस्पी और तवज्जो रही तो ये जो मुकम्मल तौर पे सर्फ है ये मुकम्मल सर्फ है, इसके अलावा कोई सर्फ नहीं है। इसमें कवाइद भी आ जाएंगे इसी तरतीब के मुताबिक, इसमें अबवाब भी आ जाएंगे, इसमें गर्दाने भी आ जाएंगे। और गर्दाने आपने वैसे नॉर्मली आप जब पढ़ते होंगे आप सिर्फ और सिर्फ सुलासी मुजर्रद की गर्दानें पढ़ते होंगे, ज़राबा से पढ़ ली है, इज्तनबा से पढ़ ली। तो हमारी कोशिश ये होगी कि तमाम अबवाब से गर्दानें हम सीखें, तमाम अबवाब जो है उनकी गर्दानें सीखें, एक मरतबा अपनी ज़ुबान से दोहरा लें, ठीक है। तो ये मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश किया गया है, इसको हमने तरतीब के मुताबिक याद करना है, इसको हमने तरतीब के मुताबिक याद करना है। चूंकि ये नक्शा किसी और ने बनाया, मैंने हाथ से बना के दिया था, तो इसमें कुछ कंपोजिंग की गलतियां हैं, वो इंशाल्लाह दूर कर देंगे सबक के दौरान। मैं आपको निशानदही कराता रहूँगा, इसमें ये गलतियां हैं, ये दुरुस्त कर लें, ठीक है। ये सर्फ का नक्शा आपके सामने आया। अब नहव का भी इसी तरह नक्शा है, इल्मुन नहव का मुकम्मल इल्मुन नहव। अलबत्ता ये बात याद रखें, खासियात अबवाब, खासियात अबवाब इसमें शामिल नहीं है, तो वो भी मुश्किल नहीं है। तो वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया वो पढ़ेंगे, लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। ज़्यादा फोकस हमारा ये इस पे होगा, वो सानवी चीज़ है, वो भी बहुत अहम है, कुरान और हदीस का तर्जुमा करने में बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन असल चीज़ ये है, जब आपको ये आती होगी फिर उसकी तरफ जाएंगे, जब ये सर्फ आपको नहीं आती होगी तो उसकी तरफ जाना फिर वो आ, सही नहीं होता। तो अब इल्मुन नहव का खुलासा और खाका जो है वो भी आपके सामने ज़रा बयान पेश कर लेते हैं, ताकि ये हाथ का बना हुआ है, लेकिन रोज़ आपको स्लाइड्स वगैरह में हम दिखाएंगे मुकम्मल तौर पे रोज़ाना की बुनियाद पे। ये नहव में नॉर्मली इसम से बहस की जाती है, नहव में नॉर्मली किससे बहस की जाती है, इसम से बहस की जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादातर गुफ्तगू हमारी क्या होगी, इसम से होगी, ठीक है। ज़्यादातर गुफ्तगू किससे होगी, इसम से होगी। तो अब इसकी तकरीबन मुख्तलिफ तकसीमात जो है उनको ज़िक्र किया गया है, मुख्तलिफ तकसीमात को क्या किया है, ज़िक्र किया गया है। मसलन पहली तकसीम जो है बेतबार नकरा, बेतबार तआयुन व आदम तआयुन क्या है, बेतबार तआयुन व आदम तआयुन क्या है। इसकी फिर दो किस्में हैं, नकरा और मारिफा। दूसरी तकसीम जो है बेतबार जिन्स क्या है, मुज़क्कर और मुअन्नस। फिर बेतबार तादाद की वाहिद तस्निया जमा। फिर बेतबार एराब के मुअरब और मबनी। फिर बेतबार अमल के आमिल मामूल। फिर बेतबार इश्तिक़ाक़ व आदम इश्तिक़ाक़, मस्दर मुश्तक़ और जामिद, ठीक है। तो ये कुछ तकसीमात है जो आपके सामने बयान कर दी जाएंगी, और ये तकरीबन जब आप देखेंगे ये मुकम्मल नहव जो है इसमें शामिल हो जाएगा। इसमें हरूफ की बहस अलग से है, वो भी अलग से एक सफ़े पे मौजूद है, और मुरक्कबात की बहस जो है वो भी अलग से है, मुरक्कब मुफीद गैर मुफीद। तो इसको इस तरीके के मुताबिक हमने याद करना है। तो आज हम बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, आज का जो हमारा सबक है मुख्तसरन हम उसको पढ़ लेते हैं जो आपने याद करना है, और आइंदा जुमे को बाकायदा इंशाअल्लाह फिर आगाज़ तो हो गया है, आइंदा जुमे से बाकायदा यानी
आधा घंटा जो है सर्फ की क्लास होगी, पहला आधा घंटा सर्फ की क्लास, फिर अगला आधा घंटा जो है नहव की क्लास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली तकसीम जो है लफ्ज। सबसे पहले हमने क्या बताया, लफ्ज। तो इंसान के मुंह से हरूफ की सूरत में जो आवाज निकलती है, इंसान के मुंह से हरूफ की सूरत में जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। इंसान के मुंह से हरूफ की सूरत में जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। तो इब्तिदाई तौर पे लफ्ज की दो किस्में हैं, मुहम्मल और मौजू। लफ्ज की कितने किस्में हैं, दो किस्में हैं, मुहम्मल और मौजू। मुहम्मल और मौजू। तो इंसान के मुंह से हरूफ की सूरत में जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। फिर लफ्ज की दो किस्में हुई, एक मौजू और एक मुहम्मल। मौजू का माना होता है बामाना लफ्ज। बामाना लफ्ज, जिस लफ्ज का कोई माना हो उसे मौजू कहते हैं। जैसे किताबुन, किताबुन किताब को कहते हैं, बामाना लफ्ज है, एक माना है इसका। रजुलुन, रजुलुन, रजुल आदमी को कहते हैं। रजुल अरबी में किसे कहते हैं, आदमी को। रजुलुन, राजीम लाम, रजुलुन। अब ये आदमी को कहते हैं, ये भी बामाना लफ्ज है। और मुहम्मल जो है बेमाना लफ्ज को कहते हैं। मुहम्मल किसे कहते हैं, बेमाना लफ्ज कहते हैं। जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, चाय शाय लेके आओ, पानी वानी लेके आ जाओ। अब ये चाय जो है लफ्ज मौजू है, इसका कोई माना है। शाय जो है ये मुहम्मल है, इसका कोई माना नहीं है। पानी वानी, अब पानी जो है ये लफ्ज मौजू है, और वानी जो है ये मुहम्मल है, इसका कोई माना नहीं है। तो अब यहाँ से इब्तिदाई से हमें मालूम हुआ कि मुहम्मल लफ्ज जो है, बेमाना जो लफ्ज है, इससे हमारी कोई गुफ्तगू नहीं होगी। हम इसके हवाले से कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेमाना लफ्ज है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी गुफ्तगू होगी मौजू लफ्ज से, हमारी गुफ्तगू किससे होगी, मौजू से। तो आगे सर्फ और नहव मुकम्मल तौर पे जो चलेगी ये लफ्ज मौजू से मुताल्लिक होगी। लफ्ज मौजू की फिर दो किस्में हैं। लफ्ज मौजू की क्या है, दो किस्में हैं, मुफरद और कलमा। मुफरद एक किस्म है मुफरद, और दूसरा है मुरक्कब। लफ्ज मौजू की कितने किस्में हैं, दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद और मुरक्कब। और यहाँ पे याद रखें कि मुफरद के फिर दो नाम है। मुफरद को मुफरद भी कहते हैं, और मुफरद का दूसरा नाम कलिमा भी है। मुफरद का दूसरा नाम क्या है, कलिमा है। तो अरबी जुबान में लफ्ज मौजू की कितनी किस्में हुई, दो किस्में हुई, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद का दूसरा नाम कलिमा है। मुफरद का दूसरा नाम क्या है, कलिमा है। तो मुफरद अल्फाज से मालूम होता है, मुफरद एक को कहते हैं। मुफरद क्या किसको कहते हैं, एक को कहते हैं। इफराद, मुफरद, फर्द वाहिद, एक बंदे को कहते हैं। तो मुफरद का माना होता है अकेला लफ्ज है जो एक माना बताए। एक लफ्ज होता है और एक माना बताता है। एक लफ्ज होता है और एक माना बताता है। जैसे किताबुन, ये एक लफ्ज है। अब किताबुन से क्या मुराद, एक ही किताब मुराद होती है, किताबुन यानी एक किताब। ठीक है, कलमुन, कलम, कलमुन यानी कोई एक कलम। अब ये क्या है, मुफरद है, अकेला लफ्ज है, एक ही माना बता रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, मुफरद कहेंगे। मुरक्कब का माना होता है वो लफ्ज जो दो या ज्यादा कलिमात से मिलके बनता है, जिसमें कम से कम कितने कलिमात होते हैं, कितने अल्फाज होते हैं,
दो अल्फाज होते हैं या दो कलिमात होते हैं या दो से ज्यादा कलिमात होते हैं, जैसे किताबुल्लाह, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अब यहाँ पे देखिए दो कलिमे हैं, किताब और दूसरा क्या, अल्लाह। एक लफ्ज क्या, किताब, और एक लफ्ज अल्लाह, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अना तालिबुल इल्मी, अना एक कलिमा, तालिबु दूसरा कलिमा, अल इल्मी तीसरा कलिमा, तो ये भी मुरक्कब है। अना तालिबुल इल्मी, मैं तालिब इल्म हूँ। अना तालिबतुल इल्मी, मैं तालिब इल्म हूँ। मर्द जब कहेगा कि मैं तालिब इल्म हूँ तो उसके लिए अना तालिबुल इल्मी, तालिबुल इल्मी कहेगा। और जब कोई खातून या तालिबा कहेगी अना तालिबतुल इल्मी, अना तालिबतुल इल्मी, ठीक है, कि मैं तालिब इल्म हूँ। तो आपको मालूम हुआ कि मुफरद एक लफ्ज को कहते हैं जो एक माना बताता है, और मुरक्कब जो दो कलिमात से या ज्यादा कलिमात से मिलके बनता है, जैसे किताबुल्लाह और अना तालिबुल इल्म, ये मैंने आपको बता दिया। तो अभी फिल वक्त हम मुरक्कब से बात के हवाले से बात नहीं करेंगे, फिल वक्त मुरक्कब से हम बात नहीं करेंगे, मुरक्कब की बात बाद में आएगी इंशाअल्लाह, फिर तफसील से मुरक्कब के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, मुरक्कब के हवाले से तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे। फिल वक्त हम मुरक्कब को एक साइड पे रख लेते हैं, मुरक्कब को आपने बस समझ लिया किसे कहते हैं, तो मुरक्कब को फिल वक्त हम क्या करेंगे, साइड पे रख देंगे, ठीक है। मुफरत की तरफ आते हैं, मुफरत की तरफ आते हैं। मुफरत के बारे में मैंने आपको बताया कि मुफरत के दो नाम है, बाज़ अफराद होते हैं उनके दो दो नाम होते हैं, ठीक है। तो मुफरत की क्या है, दो नाम है, एक घर में इस्तेमाल होता है नाम, और एक जो है बाहर मार्केट वगैरह में उसका नाम होता है। तो दो नाम भी हो सकते हैं, या किसी लड़के के दो नाम रखे गए हों, वालिदा ने एक नाम रखा हो, वालिद ने दूसरा नाम रखा हो, या आपने तारीख की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि एक तारीखी नाम होता है और एक वैसे नाम होता है, यानी तारीख के एतबार से जो नाम रखा गया, यानी जिस तारीख को तालिब इल्म बंदा पैदा हुआ उस तारीख के हिसाब से जो नाम बनता था, एक वो नाम और एक वैसे दूसरा नाम। हज़रत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के भी दो नाम थे, उनमें से सिर्फ अशरफ अली थानवी जो है ये मशहूर हो गया था। तो बहरहाल मुफरत जो है इसके भी दो नाम है, मुफरत भी कहते हैं, कलेमा भी कहते हैं। तो आपने किताबों में पढ़ा होगा मुफरत की तीन किस्में, फिर हम नहीं कहते हैं, कलेमा की तीन किस्में हैं। किताबों में आप क्या पढ़ते हैं, कलमा की तीन किस्में, वो दर हकीकत मुफरत ही की तीन किस्में होती है। कलीमा की तीन किस्में क्या है, इसम, इसम, नंबर दो फेल, और नंबर तीन हर्फ। इसम, फेल और हर्फ, इसम, फेल और हर्फ। तो मुफरत या कलिमा की कितनी किस्में हो गई, तीन किस्में हो गई, इसम, फेल और हर्फ। तो दोबारा हम दोहराते हैं कि इंसान के मुंह से हरूफ की सूरत में जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और फिर लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू जो है बामाना लफ्ज़ को कहते हैं, जैसे किताबुन, कलमुन, रजुलुन, कुर्रासतुन, कुर्रासतुन कॉपी को कहते हैं। ये जो नए नए अल्फाज आपके सामने आ रहे हैं ये नोट करते जाएं ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है वो भी बढ़ती जाए। कुर्रासतुन कॉपी को कहते हैं, ठीक है। और एक लफ्ज़ मुहम्मल जो है बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं, जैसे पानी वानी, चाय शाय में शाय और वाई, ठीक है, ये मुहम्मल है। और मुहम्मल के हवाले से बताया हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, लफ्ज़ मौजू के हवाले से गुफ्तगू होगी। तो लफ्ज़ मौजू की फिर आगे दो किस्में हैं, मुरक्कब और मुफरत। मुफरत के बारे में बताया एक लफ्ज़ हो एक माना बताए, और मुरक्कब जो दो या ज़्यादा कलिमात से मिल के बनता है, जैसे किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, अना तालिबुल इल्म, मैं तालिब इल्म हूँ। फिर मुफरत के बारे में बताया कि मुफरत का दूसरा नाम कलिमा भी है, और कलिमा की फिर तीन किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। कलिमा की कितनी किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ, इसम, फेल और हर्फ।
تو آپ جب کتاب عبارت وغیرہ پڑھتے ہیں، عبارت جو ہے اس میں اصل میں کتاب جو ہے یہ مختلف مضامین سے مل کے بنتا ہے، اور مختلف مضامین جو ہے مختلف پیراگراف سے مل کے بنتے ہیں، اور پیراگراف جو ہے وہ جملوں سے بنتے ہیں، اور جملے جو ہے وہ الفاظ سے مل کے بنتے ہیں، اور الفاظ جو ہے حروف سے بنتے ہیں۔ الفاظ کس سے بنتے ہیں؟ حروف تہجی، اصل چیز جو ہے حروف تہجی، حروف تہجی سے الفاظ بنتے ہیں، پھر الفاظ سے جو ہے مرکبات بنتے ہیں یعنی جملے بنتے ہیں، اور پھر جملوں سے کیا کہتے ہیں پیراگرافز بنتے ہیں، اور پھر ان سے مضمون بنتا ہے، اور پھر مختلف مضامین جب جمع ہو جاتے ہیں کتاب بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی لفظ ہمیں نظر آئے کتاب میں تو وہ یہی تین، یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہو سکتا، وہ بس یہی تین چیزیں ہوں گی، اسم فعل حرف، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی۔ تو جب ہم صحیح طریقے سے اسم کو پہچانیں گے، صحیح طریقے سے فعل کو پہچانیں گے، صحیح طریقے سے حرف کو پہچانیں گے، تو آپ مجھے بتائیں عبارت کا پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوگا یا آسان ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو زیادہ تر اسم کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوگی وہ نحو میں کریں گے، علم النحو میں کریں گے، اور زیادہ تر جو فعل کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ ہم صرف میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور حرف کے حوالے سے گفتگو جو ہے زیادہ تر ہم علم النحو میں کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف میں صرف فعل سے بحث کی جاتی ہے، اسم سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ علم الصرف میں فعل سے بھی ڈسکشن کی جاتی ہے، اور اسم کے حوالے سے بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی طرح علم النحو میں اسم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے اور فعل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اسم سے زیادہ بحث کی جاتی ہے، حروف سے بھی زیادہ بحث کی جاتی ہے، فعل سے کم بحث کی جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب یاد کرنے کا کیا کام ہو گیا؟ لفظ سے آپ نے شروع ہو جانا ہے، لفظ سے آپ نے یہاں تک زبانی ازبر یاد کرنا ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہو، نقشہ سامنے ہو نہ ہو، یہاں تک آپ کی جو ساری بات ہے زبانی ازبر یاد کریں، بار بار یاد کریں، بار بار دہرائیں، سورہ فاتحہ کی طرح ازبر آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے لیے اسی طرح آسان بنائیں، اور اس میں جتنی بھی مشکلات ہے، رکاوٹیں ہیں، ان سب کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔